Evening students. Today we are starting our second topic of the solid state. In the previous video we have already covered crystalline solid and amorphous solid. Now amorphous solid we have not to study too much. We are going to study crystalline solid in a detail. So as per the syllabus, crystalline solid, let's start our topic. As per the syllabus, the crystalline solid is divided into four categories: the molecular solid, ionic solid, covalent solid, and metallic solid. Okay, molecular solid, ionic solid, covalent solid, and metallic solid on the basis of nature of the bond that exists between the molecules. Recall from the class 11 that there is a two type of the bond which exists between atom to atom, and the second type of the bond which exists between molecule to molecule. Okay, so on the basis of molecule to molecule bond, the solid will be formed. We term them molecular solid, that is the bond formed between one molecule to another molecule. Broadly, this molecular solid contains van der Waals force. So the first class is that non-polar molecular solid. The first class contains non-polar molecular solid, second contains polar molecular solid, and the third contains hydrogen bonded molecular solid. Let's study each solid in a detail. In the first type of the solid where we are talking about the molecular solid. Molecular solid means those solid which are made up of by the molecules, like carbon dioxide molecule, like HCl, sulfur dioxide, or the water molecule solid. Okay, this molecular solid is further classified as non-polar, the polar solid, and the hydrogen bonded solid. In case of non-polar, polar, and hydrogen bonded solid, let's first recall from the class 11 that there is a covalent bond which is formed by the sharing of the atom, and this covalent bond which is formed by the sharing of atom is further classified as polar and non-polar covalent bond. Polar covalent bond are those bonds which are formed between different electronegative atom, as you can consider in case of HCl. Okay, there is a covalent bond between hydrogen and chlorine. This covalent bond is formed by the sharing of hydrogen electron with the chlorine electron. Now since chlorine have different electronegativity, hydrogen has different electronegativity, so the opposite vector won't cancel each other, and there is a development of partial negative charge over hydrogen chloride. Such type of the molecule where there is different electronegativity atom are present are called पोलर मोलिकुलर सॉलिड, दैट इज पोलर मोलिकुलर सॉलिड. कौन से होंगे? जहां पर दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. ऐसे किसी भी सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट. और ये सॉलिड हमारा कौन सा हो जाएगा? पोलर मोलिकुलर सॉलिड. ओके, क्विक रिव्यू दैट द कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन फॉर्म बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. और जो सॉलिड फॉर्म होगा वो कौन सा हो जाएगा? पोलर मोलिकुलर सॉलिड, जैसे HCl, सल्फर डाइऑक्साइड. अब सिंस यहाँ पे जो इंटरेक्शन फॉर्म हुआ है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इंटरेक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. जैसे कि जब एक HCl दूसरे HCl मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में होगा तो ये वाला क्लोरीन दूसरे HCl के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इन दैट केस इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल. इसके अलावा दूसरा कौन सा है अपना? नॉन पोलर. नॉन पोलर कब आएगा? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा सेम, और इस वजह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. सिमिलर इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज तो हैं, बट ये वाला मॉलिक्यूल कैसा होता है? लीनियर. एंड बिकॉज ऑफ दिस ये वाला डाइपोल कैंसिल करेगा इस डाइपोल को, और इस वजह से जो सॉलिड बनेगा वो कैसा हो जाएगा? हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट सॉलिड. ठीक है. एंड थर्ड क्लास है अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डेड. हाइड्रोजन बॉन्डेड कब आएगा? जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ. सो क्विक रिव्यू में कैसे देखना है? नॉन पोलर वो होंगे जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में आएंगे, पोलर वो होंगे जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में आएंगे,
इनके पास डायपोल होना चाहिए और इनके पास जीरो डायपोल होना चाहिए। और हाइड्रोजन बॉन्डेड वो होंगे जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। बॉन्ड को अपने को डिटेल में नहीं देखना है, क्विक रिव्यू डिफरेंस के फॉर्म में देखना है। नॉन पोलर कैसा होगा, सॉफ्ट। यू नो वेरी वेल कि कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, गैस। बट जब टेम्परेचर कम होता है तो ये किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड के फॉर्म में। बट ये सॉलिड हार्ड सॉलिड नहीं होता है, कैसा होता है, सॉफ्ट। पोलर भी कैसा रहेगा, सॉफ्ट, बट हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिडर आइस कैसा होता है, हार्ड। ये इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होगा, इंसुलेटर। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाइपोथेटिकल होता ही नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस फॉर्म में आ जाता है। इनका जो डोमिनेटिंग फोर्स होता है कौन सा होता है, डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। डिटेल में पढ़ने के लिए क्लास 11 की गैसेस स्टेट में जाइए। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो कौन सा है, ऑर्गन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड कैसा होगा, सॉफ्ट। इलेक्ट्रिसिटी का कैसा रहेगा, इंसुलेटर। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लो। और यहाँ पे जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो कैसा रहेगा, डाइपोल डाइपोल। इनका एग्जाम्पल कौन सा, HCl, सल्फर डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन सा होगा, हार्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ये भी इंसुलेटर होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है। और इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड। एग्जाम्पल इनका कौन सा है, वाटर। तीनों को डिफरेंस फॉर्म में रिमेंबर रखना है। कंपेरेटिवली हार्डनेस जो है वो नॉन पोलर सबसे सॉफ्ट है, पोलर थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है और हाइड्रोजन बॉन्डेड उससे थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तीनों ही इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर हैं, सो कभी भी मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात हो एक ही कॉमन रहेगा, तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। यानी ऐसा कोई भी सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होगा। तीनों का इंटरेक्शन याद रखना है आपको, नॉन पोलर का कैसा रहेगा, डिस्पर्सन, पोलर का कैसा रहेगा, डाइपोल, और हाइड्रोजन बॉन्डेड का कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीनों को कंबाइंडली किस कैटेगरी में लेके आते हैं, वंडर वार फोर्सेस में। एग्जांपल्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो काइंडली डू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स आल्सो। Okay, so that's with molecular solid. Now let's proceed to the next solid,